A very healthy morning, all of you. How are you all? I hope you all are taking good care of yourself. So, beta, before I'm starting this class or a chapter, I just want to say that, beta, it is very important to watch full video. Okay? It is very important to watch full video as well as read the PDF and a chapter also. Okay? So, let's start. So beta, in our previous class we already read about the Indus Valley period and extent and city architecture. In city architecture we have already read about the town planning. So basically the Indus Valley civilization has shown that people have a good knowledge of town planning. Okay, then they are also good for architects. Okay, and the most vast city were divided into how many parts? Tell me. Yes, the most city was divided into a two part. The one part is a citadel. Okay, in a citadel, beta, the granaries, assembly, town halls, and all the rich and powerful people, rich and powerful people are living at the citadel, and all the common people, they are living in a lower town. Got it, bache? So in today's class we are just reading about a life of a life for people of a Harappan civilization or a Indus Valley civilization. Got it? So beta, the people life essentially revolve around the food, water, clothing, shelter and security. Basically beta, the people who are living in that time, in that era और इन दैट सिविलाइजेशन, वो लोग उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लाइक अ फूड वाटर क्लोथिंग, शेल्टर मीन्स जहाँ वो रहते हैं, and security. These have been a main concern of human since a very long time. Even they were cave dwellers. Cave dwellers means, tell me that what is the meaning of cave dweller? Cave means गुफा and dweller means like वो आप as you know that कि वो लोग गुफाओं में भी रहते थे, कहीं जगह पर वो लोग पिट यानी गड्ढा खोद कर भी रहते थे. The some have remained the basic needs एवर सिंस, यानी कि उनकी लाइफ में क्या था, बेसिक चीज़ जिसे चाहिए होती है, लाइक फूड, वाटर, कपड़े. सो दिस इज़ द लाइफ. नाउ द हरप्पन सिविलाइजेशन अराउंड द सम टाइम एज द हरप्पन एरा, इट इंडस वैली डेमोन्स्ट्रेट एंड अर्बनाइजेशन ऑफ cities. बेटा इन अ प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दे हैव अ स्ट्रीट्स, और कितनी प्लानिंग स्ट्रीट्स थी, हाउसिंग, बिल्डिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनीज. सो पीपल दे आर ग्रोइंग लाइक उनकी लाइफ जो है वो पूरे विलेज एरिया से सीधा अर्बन सिटीज़ में कन्वर्ट हो रही थी. ओके, सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सेटलमेंट्स वुड हैव टेकन अ ग्रेटर प्लेस. नाउ अब क्या था, फैमिलीज़ बढ़ रही थी, बहुत सारी फैमिलीज़, मतलब लाइक ग्रोथ बढ़ रही थी, पॉपुलेशन डेवलप हो रही थी. इट इज़ द understandable that people who grow crops manage to grow enough crop to more than their own needs. अब उन्होंने क्या करा, first of all they are only growing the crop for a own food, यानी कि वो क्रॉप्स को किस लिए ग्रो करते थे, सिर्फ खुद के खाने के लिए. नाउ उनकी जैसे जैसे फैमिली बढ़ी, दे हैव टू ग्रो अ मोर क्रॉप्स, यानी कि उन्होंने अब ज़्यादा क्रॉप्स उगानी शुरू करी ताकि वो अपनी नीड्स तो अपने लिए तो रख सके, एज वेल एज दे कैन सेल टू न मार्केट. दस लिविंग दिस आर फ्री टेकन as they associated work like a making tools, building houses, other structures, carts, working and a labor and trader as so on. Now in a urbanization, the Harappan civilization people have going in a other places also, यानी कि अब वो सिर्फ खेती नहीं कर रहे, they are making tools also, houses and building, structure बना रहे हैं, कार्ट्स बना रहे हैं, लाइक गाड़ी, इधर बुलक कार्ट और इधर भी हॉर्स कार्ट.
एज अ लेबर यानी कि मजदूरों की तरह काम भी कर रहे हैं. एंड ट्रेडर, ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी. हु इज अ ट्रेडर्स? वट इज द वर्क ऑफ ट्रेडर? ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर्स हैव द सेल द प्रोडक्ट, यानी किसी भी जगह को एक जगह से लाकर दूसरी जगह पर सेल करता है. दैट इज अ ट्रेडर. सो गवर्नेंस. नाउ द गवर्नेंस, नो स्पेसिफिक फाउंडिंग हैव अ रूलर इन दिस पीरियड, यानी कि अभी तक हमें पता नहीं चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन रूलर था. ओके, बट हाउएवर दे साइन दे हैव गवर्न अ वेरी सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. बेसिकली बेटा द वर्क एंड द एडमिनिस्ट्रेशन लाइक अ बहुत सिस्टमेटिक, बहुत तरीके से किया जाता होगा. द सोसाइटी ग्रो इन नंबर्स, people adopting a system of governance. They possibly had a headman who take decision on the issue of all time. Like जैसे हमारे in a village there is a sarpanch also, so he is a headman. So in that area or at that cities, some having a responsible person or a head who took the decision of all issues. Okay, इश्यूज़ एंड कन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई झगड़ा विवाद को लेकर जो एक पर्सन होता है जो कि डिसीजन लेता है. दे मस्ट हैव अ डिवाइस अ सिस्टम ऑफ सिक्योरिंग एरिया, यानी कि उस समय पर सिक्योरिटी के लिए कुछ सैनिक रखे गए होंगे. एंड द फाइटिंग ऑफ द अदर कम्युनिटी टू अदर साइड. हैव यू सीन इन द सम मूवीज़ ऑल्सो कि देयर इज़ वन हेडमैन हु, उसके कुछ सिपाही होते हैं जो क्या करते हैं, दे हैव टू सिक्योर देयर ओन एरिया, यानी कि अपने एरिया को सिक्योर रखते हैं. जो बाहर से कोई उनके ऊपर अटैक करे उसको सेव करते हैं. सो इट इज़ likelihood that later taken for a army which is probably later the someone ultimately become the protector and ruler, यानी कि in at that time no specific ruler is there, only headman is there. Okay, who can be a protector or a ruler in a next time. Now we are just talking about a farming and cattle herding. Cattle means cow, buffalo, sheep. These are the cattle. Okay, farming and cattle herding remain the principal occupation. It is the main occupation beta, that is called, we call the principal occupation of the people in the Indus Valley civilization. यानी कि ये लोग या तो फार्मिंग करते थे या गॉट, काउ, शीप, बफेलो, इनका मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स को सेल करते थे. दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हैव इनफ सरप्लस टू स्टोर देम अ फ्यूचर यूज. एज यू नो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. सो बेटा दे आर ऑल्सो यूजिंग द प्लग, सिकल्स. ओके, दिस इज़ द टूल्स जो कि प्लग एंड सिकल्स यूज़ करते थे. एंड दे इंडिकेट दैट द सिविलाइजेशन यूज टू ग्रो एंड विच इज़ द मेन क्रॉप्स, wheat, barley, maize, millet and cotton. Okay beta, listen बच्चे, if you having any problem in a particular word, beta use dictionary. Okay, there is a evidence, it is a main evidence. Evidence means proof. It is the main evidence that people in Indus Valley civilization had developed art of taming. Taming means pet बनाना, यानी कि पालतू बनाना. And rearing cattles. Cattles कौन कौन से? Goats, sheep, along with the dogs and pigs also. However, their pen horse was not known, as there are no traces and horses have been found close to Indus Valley sites. यानी कि in that Indus Valley sites there is no any evidence or proof of horse, यानी कि horse के proof हमें नहीं मिले हैं. Now we are just talking about the pottery. Okay, बिकॉज उस टाइम पर क्या था, एल्यूमिनियम या हम लोग कांच के बर्तन में तो खाना नहीं खाते थे. वी आर यूजिंग द पोट्री, यानी कि मिट्टी के बर्तनों में. द पोट्री इज द डिफरेंट शेप्स, साइज एंड डिज़ाइन हैव बीन अर्थन फ्रॉम द साइट्स, यानी कि बहुत सारी साइट्स से हमें मिट्टी के बर्तन जैसे चीज़ें मिली हैं. दिस शो द पीपल हैव मास्टर्ड ऑफ आर्ट एंड मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ अर्थनवेयर, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की ये बहुत सुंदर कला जानते थे. दे वर हैव अ डेकोरेटेड एंड ज्योमेट्रिकल फिगरेटिव डिज़ाइंस. द फर्स्ट ग्रेज इन हीट एंड वर देन यूज
एक्सटेंसिवली बिकॉज बेटा पहले क्या था, अभी अगर इफ़ द पोटर हैव मेक अ पॉट, अगर कोई पॉटर पॉट बना रहा है और वो ऐसे ही उसको सुखाकर आपको सेल कर देगा तो वो जल्दी टूट जाता है. उसको सॉलिड बनाने के लिए उसको हीट अप करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तब जाके वो मिट्टी का बर्तन स्ट्रॉन्ग बनता है. सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम टू हीट एन अर्थन पॉट टू यूज़ दैट एक्सटेंसिवली, यानी कि ज़्यादा दिन यूज़ कर सके इसके लिए वो उस अर्थन पॉट्स को उन्होंने बेक करना यानी कि गर्म करके देना स्टार्ट कर दिया था. सो द नेक्स्ट वन इज़ अ क्राफ्ट्समैन. क्राफ्ट्समैन कौन होते हैं? द आर्ट वर्क, दोज हु आर डूइंग अ आर्ट वर्क with their hands. So artwork on the pots and many other items made of beads, stones, metals and variety of color and texture, they are convey that craftsmen were quite good and well skilled. Beta, they have on without any training, without any things, they have to do a well skilled techniques they are using. So the pottery made to terracotta has a reddish color and design in black. Basically बेटा terracotta is a pottery, ठीक है. टेराकोटा क्या है? पोट्री पे डिज़ाइनिंग होती है और बेसिकली व्हाट इज द कलर? रेडिश कलर विद द डिज़ाइन इन ब्लैक, यानी कि ब्लैक पर रेडिश कलर किया जाता है, दैट इज़ अ टेराकोटा डिज़ाइन. नाउ द ज्वेलरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. ऑर्नामेंट्स लाइक बेंगल्स, bed necklace, amulets, ring made of gold, silver, bronze, even the terracotta have found and exhibition sites, यानी कि जब बहुत जगहों पर एग्जीबिशन हुई, खुदाई की गई, तो हमें बहुत सारी बैंगल्स, नेकलेस, एमलेट्स मेड ऑफ, और वो किस किस चीज़ों की बनी हुई थी? मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज. ओके, दिस शो दैट, क्या शो करता है ये? दिस शो दैट people were aware about existing and use of various metals, and beta that time a man is also wearing a ornaments, यानी कि आदमी भी हीरे जेवरात पहन, मतलब लाइक ऑर्नामेंट, गहने पहनते थे. Got it? Now the another thing is a cloth making. So archaeologists have found the evidence people made cloth from cotton. So people's किस चीज़ के कपड़े पहनते थे? ये कॉटन के. दे फाइंडिंग ऑफ स्पेंडलर्स. व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ स्पेंडलर्स बेटा? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू मेक थ्रेड आउट ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन में से धागे निकालने की मशीन को स्पेंडल्स कहते हैं. दैट वर्ड शो द थ्रेड वॉज बीइंग मेड फ्रॉम कॉटन. Small pieces of cotton, they also indicate use of cotton or art of cloth making was prevalent. The stone statue, have you seen this stone statue? Seen this picture beta? A stone statue of man was from Mohenjo-daro. Beta, this statue are found from the Mohenjo-daro से ये मिला हमें, which show him wearing a cloth with the embroidered flower on it. आपने देखा होगा इसकी जो क्लोथ पे इसकी शॉल जो है, देयर इज़ अ डिज़ाइनिंग ऑन दैट. डिज़ाइनिंग दिख रही है आपको. सो दीज टाइप ऑफ पीपल हैव वेयरिंग अ डिज़ाइनर क्लोथ्स ऑल्सो, यानी कि डिज़ाइंस होता था. हैव यू सीन इज ऑन द हेड, कि इसने क्या है, इसने कुछ ऐसा हेडबैंड पहना हुआ है. So these show that the people who are living in that time or Indus Valley civilization, they used to wear ornaments also, यानी कि मैन ornaments पहन रहा है. This type of stall they are using, or this type of design they are using. So beta, it is very important, again I am saying beta, don't panic for exams. It is very easy. You have to watch the video twice, thrice, कम से कम 2 से 3 वीडियो देखा करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आपको ईजिली समझ आएगा उतना आप अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर पाएंगे. ओके, सो टुडे इज़ योर होमवर्क, दैट इज़ अ कीवर्ड्स. दिस कीवर्ड्स यू कैन राइट इन योर नोटबुक. गॉट इट बच्चे? थैंक यू सो मच बच्चे. एंड अगेन आई एम सेइंग कीप गोइंग, कीप हेल्दी, डोंट गो आउटसाइड wearing a mask, and do your work on time. It is very important. Do work on time. लेट नहीं करना. जिसने जो काम दिया है वो सेम टाइम पे आपने करना है.
गॉट इट बच्चे? थैंक यू.